Hello, welcome back to another episode of Story of Coaches at PFC. In this one, we are going to talk to Coach Deepthi, who has been a nutrition and fitness coach for our team for quite some time. And आज के episode में we'll be talking about some common challenges that people face when they're starting off their lifting journey, या फिर basic suggestion around kids nutrition, and what kind of things parents can inculcate in their own routine so that kids can also benefit from it. Hi Varnit, how are you? I'm good. आज 7 AM पे मैं उठा हूँ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए एंड आई होप कनाडा जाके आपको अच्छा लग रहा होगा. अच्छा लग रहा है, बहुत टफ है. या सो फार सो गुड. ओके, सो लाइक इनिशियल में कुछ आपको स्ट्रगल हुआ क्या उधर कि लाइक वर्कआउट का, डाइट का, ऐसा कुछ आपने फेस किया हो? डाइट का थोड़ा हुआ, बट थैंक्स टू द प्रोटीन बार्स दैट यू गिवन मी, स्नैकिंग वाज सॉर्टेड. आई Okay. कैरीड देम. एंड उसके अलावा डाइट का इतना इशू नहीं है. वर्कआउट, बिकॉज वी वर स्टेइंग इन अ वेरी स्मॉल अपार्टमेंट, यस वर्कआउट वाज एन इशू, बट बिकॉज वी वॉक्ड सो मच एवरीवेयर, सो इट्स ओके. आई मीन वी मैनेज्ड. ओके, सो आज के एपिसोड में मोस्टली विल बी टॉकिंग थोड़ा अबाउट योर जर्नी एज वेल एंड लाइक चैलेंजेस जो फेस करते हैं लोग. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट आपके जर्नी से, लाइक वेयर डिड यू स्टार्ट ऑफ, या कैसा रहा अब तक लाइक योर होल फिटनेस जर्नी सो फार? So background say I'm an engineer. उसके बाद I worked for a couple of years. Then I had 2 children. Then the same story. I got really fat, and then suddenly one day tube light जली कि ऐसे तो नहीं चलेगा. If I want to enjoy with my children, I have to run after them. I have to get fit. So my weight was after my second child, it was all about Punjabi households में होता है ना पंजीरी और हलवा ये वो, and weight was touching 70-75. So then I realized पहले मैंने CrossFit join करा, but because of my weight बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा because I wasn't following any diet as such. Okay. Then slowly I started reading more about it and then implementing it on myself. And then I lost like 10-12 kgs, and then मैंने ये courses वगैरह करे. And I used to follow Chirag since a long time. I really admired his work. So then I messaged him in November. So then we started working together, and बस. ओके, इंटरेस्टिंग है. प्लस आई थिंक जैसे आपने बोला राइट कि जॉब के अराउंड आपने मोस्टली ध्यान देना शुरू किया फिटनेस पे. सो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस इनिशियल लेवल पे जब स्टार्ट ऑफ किया? इट कुड बी लाइक स्मॉल, इट कुड बी बिग, मतलब हर तरह का कुछ ना कुछ हो सकता है चैलेंज प्रॉबेबली. So I think I was 35 or 36 when I realized that I'm really unfit because my markers were haywire. Fatty liver भी होना शुरू हो गया था, सब कुछ. I mean, it was gone. So then I realized कि yeah, I need to do something. Challenges तो यही because my kids were so small. They are just 1.5 years apart. They were really little. एक का बड़ा स्कूल में जा रहा है, एक छोटे स्कूल में जा रहा है with the Delhi का traffic, picking one, dropping the other, dropping one, picking the other, and then taking them to their classes and all. I didn't get much time for myself. So diet not an issue. I had people to cook for me. तो but workout was an issue कि अपने लिए time निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था. But then slowly I put myself first, and then I realized that this is important. Okay, so and the changing point was when you wanted to like chase after them, and उसके around you felt like कि अब हाँ it's time to like take a step and अब Yeah. करना चाहिए कुछ, right? Okay. बिल्कुल. Yeah. And now that you have been coaching people as well, अभी आपको टाइम हो गया लोगों को कोच करते हुए भी, आपको क्या लगता है लोगों के क्या चैलेंजेस? आई एम श्योर कुछ लोगों के सिमिलर चैलेंजेस होंगे, बट लाइक कॉमनली लाइक व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू यू फेस? लोग क्या लेके आते हैं आपके पास? So it really varies from person to person. For example, एक कोई housewife है, she doesn't want to cook for herself अलग से, तो वो मेरे से ये पूछती कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, हाउ डू आई मेक माई मील्स, मैं अपना कैसे अलग से निकालूँ, सो दैट देन वी गाइड देम उसके हिसाब से. Okay. अगर कोई स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रह रहा है, उसके अलग चैलेंजेस हैं कि ही हैज टू ईट द मेस फूड, सो दैट ही हैज टू बी गाइडेड डिफरेंटली. So there are different people, and there's no like one thing fits all kind of an approach. That cannot work. We have to go case by case. Okay.
बट कुछ केसेस होंगे जो लाइक काफ़ी कॉमनली आते होंगे, लाइक आई एम अज्यूमिंग फैट लॉस के मोस्टली होते हैं लोग कंपेयर टू मसल ग्रोथ. सो इज़ दैट द सेम फॉर यू? बिकॉज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में फैट लॉस वाले ज़्यादा मुझे मैंने नोटिस किया अप्रोच करते हैं प्रॉबेबली. सो एब्सोल्युटली, बिकॉज वी इंडियंस वी आर फूड लवर्स, तो मोस्टली फैट लॉस के ही होते हैं. ओके. एंड या दैट्स ट्रू, मोस्टली फैट लॉस के ही होते हैं. एंड लाइक यू सेड राइट कि अपना इंडियन लोग होते हैं फूड लवर. सो व्हाई डू यू थिंक कि फूड लवर होने के साथ साथ यू कैन बी फिट, राइट, अगर पता हो चीज़ें, बट व्हाई डू यू थिंक कि मोस्टली या ओबीज साइड पे चले जाते हैं या फिर मोस्टली हेल्दियर साइड पे चले जाते हैं जिसको टिपिकली बोलते हैं? सो व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस? ऐसा स्विच या ट्रांजिशन क्यों हो जाता है? बिकॉज एक तो बैलेंस नहीं है हर मील में. वी ईट वेरी वेरी कार्ब हेवी फूड इन इंडिया, स्पेशली व्हेन अगर कोई वेजिटेरियन है, आप देखोगे हार्डली 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होगा उसकी डाइट में, अगर वो प्रॉपरली क्वांटिफाई ना कर रहा हो अपने डाइट को, राइट? तो उसके अलावा वी हैव स्टाफ, वी हैव पीपल टू डू थिंग्स फॉर अस. अगर मुझे आज एक आज नहीं, पहले पानी का ग्लास भी चाहिए होता था, तो आई वुड कॉल माई स्टाफ, जस्ट गिव मी वाटर. सो दैट वे नीट भी बहुत नहीं होता हम लोग का. दैट वे जहां जाना है गाड़ी में जाना है, बिकॉज वेदर डजंट परमिट. सो ऑल दीज थिंग्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज अ ह्यूज इशू. सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है सबका. सो ऑल दीज थिंग्स दे क्लब टुगेदर, और जैसे जैसे आप एज करते हो वैसे वैसे और डिफिकल्ट हो जाता है अपने अपने आप को चेंज करना, अपनी बॉडी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना. सो ऑल दीज थिंग्स रियली मैटर. And you mentioned the age wala factor, right? It gets difficult once you start getting old. But I think that's the point जहाँ पे people realize कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि अब छोड़ो, दवा खाएंगे. So like early stage पे if you just like start off early तो you have थोड़ा सा upper hand. But ऐसा नहीं है कि if late हो गया तो things can be fixed, as long as you are like willing to take efforts कि fix करना है उसको. बट या इस अप्रोच को मैंने एक और एपिसोड में भी डिस्कस किया था, दैट कि लोगों का इतना कंप्लेसेंट माइंडसेट क्यों बन जाता है कि बाद में देखा जाएगा, या अभी 25 का हूँ या 30 का हूँ या 35 का हूँ, बाद में देखेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब दवा खा ली जाएगी. ऐसा अप्रोच व्हाई डू यू थिंक कि एग्जिस्ट करता है लोगों के अंदर? क्योंकि वो देखते आए हैं, दवाइयां भी मिल जाती हैं. इट्स अ गिवन कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, अगर कोई 40 साल की उम्र में खा रहा है शुगर की दवाई या कोई भी बीपी की दवाई, एक तरह से आप जिस सोसाइटी में घूमते हो वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं. अगर आप फिट लोगों में घूमोगे तो वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी. अगर आप प्रोटीन रिच फूड खा रहे हो और मेरे आसपास के लोग नहीं खा रहे, दे विल टेंड टू क्वेश्चन कि यार तू तो क्या इतना फिटनेस को करती रहती है. बट देन इफ आई मूव इन दैट सोसाइटी कि जिसमें सभी हेल्दी हैं, सभी जिम जा रहे हैं, तो नोबडी विल क्वेश्चन मी. तो एक एनवायरनमेंट पे भी फर्क पड़ता है. अगर सारे बीपी की गोली खा रहे हैं तो एक चीजें नॉर्मलाइज भी हो जाती है. एंड आई थिंक और उसका मुझे है कि पॉपुलेशन मुझे अपने आप ज़्यादा को है, ठीक राइट? करना है, बहुत ज्यादा है. और मुझे लगता नहीं, मुझे अपने आप को ठीक रखना है. टुडे आई एम 40 years old and all my markers are perfectly fine. So that's a big achievement for me at this age. इतनी भी old नहीं हूँ, but still I feel, it's I feel good about myself. So I'll tell you a small incident. My husband had got a very beautiful dress for me from Australia. It didn't fit me, and I felt so bad. I think वो भी मेरा एक ट्रिगर था कि ये ड्रेस इतनी अच्छी है और मुझे ये पहननी है. So then I worked hard to fit into, and on my 40th birthday, I wore it. Okay. I think worth it then. Like you have to find your reasons. Yeah. But I think that motivates. और जितना जल्दी रीज़न फाइंड करेंगे लोग उतना बेटर है. Right. At least that's what I think कि plus it gets really easy to fix things उससे ख़राब होने से पहले वाला चीज़, because you have to spend like sometimes double the effort कि अब इतना ख़राब हो चुका है, अब उसको पहले नॉर्मल लाओ, फिर नॉर्मल के बाद नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ. So why not just start early? I mean that's my approach, at least लोगों को मैं जो बताता हूँ कि शेयर करता हूँ कि you should start early and start with just walking. कुछ फैंसी ना करो, कुछ भी एक्स्ट्रा ना करो, just start walking. I am surprised कि लोग ढंग से वॉक भी नहीं करते हैं, कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालते हैं. कि
आई बिलीव कि अगर इंसान दिन का लाइक अगर कुछ 7,000 8,000 स्टेप्स भी ऑन एन एवरेज चलेगा तो दैट्स लाइक मोर देन इनफ टू जस्ट कीप थिंग्स गोइंग. मतलब दे कैन बी इन अ डिसेंट शेप गिवन द डाइट भी कंट्रोल में. ऐसा नहीं कि सिर्फ टहल के कुछ भी खा रहे हैं वो भी नहीं वर्क करेगा. बट दिस इतना भी एक्टिविटी लोगों को बहुत हाई कंसिडर होता है. तो दैट्स समथिंग विच कम्स एज अ शॉक टू मी. बट बिकॉज मैं मोस्टली एक्टिव रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं चलता था उतना. बट आई कैन लाइक एम्पथाइज विद देम कि क्यों ऐसा अप्रोच होगा. बट दैट्स वाई कीप सेइंग वॉक करो वॉक करो वॉक करो. इस चीज़ को मैं काफ़ी फोकस करता हूँ. सो लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वॉकिंग एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. बिकॉज सम पीपल आर लाइक नॉट इन अ कंडीशन लाइक अगर कोई बहुत ओवर वेट है तो दे आर प्रॉब्ली नॉट इन अ कंडीशन टू राइट लाइक कार्डियो स्टार्ट कर दिया जाते ही दौड़ना शुरू कर दिया. ऐसा कुछ नहीं. बट लाइक विद वॉकिंग दे कैन आई थिंक मेक डिसेंट चेंजेस एंड देन उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं. लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस अप्रोच. एब्सोल्युटली. अगर आप एक साथ 1 घंटा वॉक नहीं कर सकते देन यू कैन ब्रेक इट लाइक आफ्टर, स्पेशली इवन अगर बहुत बिजी हो आप, लाइक सारा दिन सेडेंट्री हो या वैसे ही ओवरवेट की वजह से आप नहीं कर पा रहे, यू कैन ब्रेक इट आफ्टर एवरी मील. वॉक फॉर 15 मिनट्स घर में ही कर लो, चाहे या सुबह आधा घंटा उठ के आप वॉक करो. उससे वैसे ही आपका दिमाग भी इतना फ्रेश हो जाता है. बट हाँ, ये नहीं करो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ सुबह जाओ और पूरी छोले खा के वापस आ रहे हो या कचौड़ी खा के. दैट इज, आई एम टेलिंग यू, इट हैपेंस a lot. So मतलब आधा घंटा टहल के then that doesn't give you the license to have कचौरी in the morning. So वो mindset नहीं होना चाहिए, वो exercise के mindset से ही होनी चाहिए वो. सो ये भी चीज़ होता है राइट कि मैंने इतना वॉक किया तो आई डिज़र्व दिस करके वाला फैक्टर. तो डिज़र्व इतना नहीं करते हैं टू बी ऑनेस्ट. मतलब Not at all. रोज़ रोज़ तो बिल्कुल ही डिज़र्व नहीं करते हैं. मतलब तो आई हैव एक्सपीरियंस मतलब कुछ केसेस में कि वो मेरे को बताते नहीं थे. बट वही जैसे आपने एग्जांपल दिया राइट कि खा के आ गए पूड़ी छोले कुछ समथिंग इस तरह का कुछ खा लिया. बट दे यूज टू गो ऑन अ लाइक अ अर्ली मॉर्निंग वॉक जाते थे. हाफ एन आवर गए होंगे और आइसक्रीम खा के आ रहे हैं वापस आराम से. और ये मुझे हाँ. बता भी नहीं रहे थे कि आइसक्रीम खाया. उनको लगा कि मैंने इतना चला है तो खा लेंगे, नॉर्मल है, खा सकते हैं. तो ये चीज़ें होती है जो आई थिंक अवेयरनेस का इशू है मोस्टली. आई वुड से कि लोग Yeah. ज़्यादा अवेयर नहीं है कि हाउ दिस अफेक्ट्स दैट. मतलब उन लोगों को पूरा न्यूट्रिशन साइंस नहीं एकदम घुस के पढ़ना है. बट कुछ बेसिक्स हैं आई थिंक जो हेल्प करेगा लोगों को. एंड उसमें लाइक यू राइटली सेड भी थोड़ी देर पहले कि प्रोटीन इंटेक कम है. एंड 15-20 ग्राम तो इट्स लाइक एडिशनल कुछ जो भी होगा वो खाने में. जैसे राइस वाला प्रोटीन काउंट कर लूँगा, राइस में जो होता है चपाती में होता है तो वो सबसे आता है. बट लाइक यू मैंशन कार्ब बेस्ड हैविली है इंडियन डाइट अगर सिर्फ बात की जाए. एंड आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नीडेड नहीं है किसी को इम्प्रूव करने के लिए. थोड़ा भी प्रोटीन ऐड किया, थोड़ा सा वॉक किया तो लाइक इतने में ही बहुत लोगों का वेट चेंज हो जाएगा या बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा. सो दिस इज़ लाइक अ जेनेरिक अप्रोच थोड़ा चीज़ों को लेके विच विल वर्क आइदर फॉर मेल्स या फीमेल्स. दोनों के लिए काम करेगा. लाइक बेसिक साइंस है, सबके लिए करना चाहिए एंड बच्चों के लिए भी करेगा इनफैक्ट. सो बट व्हेन इट कम्स टू जो फीमेल क्लाइंट्स हैं जो मेंटी हैं आपके, स्पेशली जो अपना जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहे हैं लेट्स जस्ट से, तो उनके लिए लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट या व्हाट एडवाइस डू यू हैव? See, because they are coming at a certain age, जैसे जैसे हम एज करते हैं ना, आपको भी स्लोली पता लगेगा, we become more firm in our ideas and our lifestyle. It's difficult to incorporate change at after a certain age, 40, 45. So in that case, baby steps are required. कि आप जो खा रहे हो वही खाओ, बस तला हुआ नहीं खाओ, डिजर्ट नहीं खाओ, और हर मील में थोड़ा एक प्रोटीन ऐड कर दो. हाँ, सो ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा एग्स ले लिया, लंच में थोड़ा सा पनीर ऐड कर दिया नॉर्मल खाने में, एंड डिनर में थोड़ा सोया या चिकन वट एवर ऐड कर दिया. एंड उसके अलावा थोड़ा बहुत वॉक, और इफ दे आर विलिंग टू गो टू द जिम, दैट्स क्वाइट रेयर ऑनेस्टली. बट अगर घर पे ही वर्कआउट करना है तो जस्ट गो फॉर एडजस्टेबल डम्बल्स, अमेजोन से आते हैं, इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड टू मच. तो बेसिक 3 times a week is also sufficient. बेसिक आधा घंटा लगेगा उन एक्सरसाइजेस को करने में, एंड दे कैन बी सेफली डन एट होम. इवन रेजिस्टेंस बैंड इज very good. So these baby steps are important. I can never tell them कि आप 6 दिन जिम जाओ जी, push pull legs. That's not going to work for them. So it really depends. I mean, they really have to go very, very slow with the changes.
या पेशेंस इज लाइक यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज जल्दी रिजल्ट नहीं Yeah, मिलते एंड यू लूज मोटिवेशन right. एंड बट वंस यू गेट देम लाइक फिर अपना सेल्फ मोटिवेशन चालू हो जाता है कि मैंने इतना अचीव कर लिया, देन अब और हो ही जाएगा. सो एंड समटाइम्स दे ऑल्सो टेल मी कि मेरे उस फ्रेंड ने तो ये शेक पिया था जी, वो तो एक महीने में 20 किलो कम हो गया. तो फिर उनको भी काउंसिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दैट वेट विल कम बैक एंड इट विल अफेक्ट देयर हेल्थ अल्टीमेटली. तो आप जो कर रहे हो, चाहे आपका एक महीने में 2 ही किलो कम होगा, लेकिन वो सस्टेनेबल वे से होगा. यू विल नॉट फील वीक और दोज थिंग्स. ये भी उनको काउंसिल करना पड़ता है. या आई थिंक दिस शेक्स वाला ट्रेंड हैज़ बीन हेयर फॉर अ वाइल, मतलब Oh काफ़ी my टाइम God. से है, एंड आई थिंक इट्स हेयर टू स्टे. कुछ और टाइम भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि Yeah. कम्प्लीटली चला जाएगा, बिकॉज पीपल स्टिल नीड दोज क्विक फिक्सेस या अपीलिंग प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं कि कुछ मिल Right. गया इजी वे आउट. बेसिकली वी ऑल वांट एन इजी वे आउट. लाइक मैं सिर्फ फिटनेस का नहीं बोल रहा हूँ. लाइक अगर मुझे सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर जैसे होता है कि फॉलोअर मेरे को बहुत सारा चाहिए या वैसा चाहिए और जल्दी चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि बिना एफर्ट के भी चाहिए कि बैठे बैठे बस आता रहे वाला अप्रोच. सो आई थिंक दैट्स लाइक ट्रांसफरेबल हर जगह, बट इसमें कंज्यूमर को स्मार्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि बेचने वाले तभी बेच रहे हैं बिकॉज आप खरीद रहे हो. इट्स नॉट लाइक Yeah. कि उनका मन आया ऐसे ही बना के दिए जा रहे हैं, उनको लॉस में जाना है. उनको पता है कि आप ये ढूंढ रहे हो, वो बनाएंगे. हेल्प करता नहीं करता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर बाइंग दैट. एंड Yeah. मोस्टली हार्मफुल है आई वुड से, बिकॉज बिकॉज आप सीख नहीं रहे हो अपने ना बॉडी के बारे में. बेसिकली यू आर ट्राइंग टू चेज अ शॉर्टकट जो कि प्रॉब्ली आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हो सस्टेन, एंड वोंट बी हेल्पफुल एनीवे. एंड व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स लाइक जो हॉस्टल में या मेस में या फिर इवन द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग अब्रॉड, तो उनके लिए व्हाट सजेशंस वुड यू हैव so that like they can at least maintain their fitness goals या reach their fitness goals? सो देर आर टू थिंग्स. जब यहाँ इंडिया में कोई बच्चा स्टूडेंट होता है जो मेस में खा रहा है, ठीक है, आई हैव अ कपल ऑफ क्लाइंट्स लाइक दैट. तो मेस में जो मिल रहा है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रोटी दाल सब्जी. उसके अलावा हम अगर तो एक केटल है हमारे पास, तो वी कैन बॉयल एग्स एंड वे प्रोटीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो फिर उस केस में. ठीक है. एंड लेकिन अगर कोई बच्चा अब्रॉड पढ़ रहा है, जैसे आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स लाइक दोज दीज डेज, सो देन अगर आपने वन पर्सन के लिए कुकिंग करना है, दैट्स रियली नॉट टफ हियर अब्रॉड, बिकॉज आप यू गेट दीज चॉप्ड वेजिटेबल्स हियर फ्रोजन, यू गेट कुक्ड चिकन एंड सैलड्स जिसके पीछे सारे मैक्रोज लिखे होते हैं. तो इफ यू वांट, यू कैन जस्ट पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड हैव अ मील, एंड यू विल नो कि आपके अंदर कितना प्रोटीन गया इस मील में और कितना कार्ब्स गया, कितना फैट गया. एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा. आपको कुछ भी नहीं करना. स्पेशली अगर जैसे कोई बेसिक चीज है, जैसे आपको चिल्ला बनाना है बेसन का, इट विल हार्डली टेक यू 10 मिनट्स. आपको अगर मैंने 40 ग्राम्स बेसन दिया है, आप उसको नापो, पानी डालो, कटे हुए फ्रोजन वेजिटेबल्स डालो, and just cook it on a griddle. That's it. It takes 10 minutes. Everything is pre-packaged, cut, washed. It's quite simple if अगर इच्छा होनी चाहिए करने की. और नहीं तो फिर फास्ट फूड ऑप्शंस आर, आई मीन जब से मैं यहाँ आई हूँ, आई ओनली बीन सीइंग मैकडोनल्ड्स एंड केएफसी एंड बर्गर किंग एवरीवेयर अराउंड द कॉर्नर. कोई हेल्थी फूड जॉइंट्स नहीं है यहाँ, मुझे तो नहीं दिखे. Interesting. So I think people, I mean the students who are living abroad, so उनका थोड़ा सा comparatively easier है to maintain their diet, I Yeah, would say. right. ऐसा नहीं है कि इंडिया में बहुत मुश्किल है, but it's like you have to take some extra effort to get that done. But yeah, it makes sense, क्योंकि आपको जब सब कुछ मिल रहा है, you just have to combine it smartly and Yeah, have it. That's all. absolutely. That's pretty much it. Absolutely. Yeah, yeah. Yeah. And like अभी like talking about your routine, like what does your training routine look like? Like मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कितना sets exercise and all that, but like what does it typically look like? How many weeks or how many days a week you train? इस तरह से कैसा है approach? So see, अभी तो मैंने यहाँ जिम ज्वाइन नहीं करा है, because my life is quite haywire right now. But जब मैं दिल्ली में थी, I was very consistent. 5:45 बजे जिम खुलता था, मैं 5:30 उसके गेट पे होती थी. So
I mostly did push pull legs and upper lower क्योंकि 5 days में करती थी and one day I used to like my dance fitness या इस type का कुछ cardio, so I loved dancing. So that was my routine. Okay. And when it comes to food intake, like what are your like go-to protein sources for the day? Chicken. Chicken is every day. It's my go-to source. Eggs, I don't relish them, but I eat them. अभी Okay. आजकल तो वही खा रही हूँ because I don't have the patience to make parathas and all. So eggs and toast is my breakfast with a slice of cheese. Yeah, basically chicken. And when जब मुझे लगता है कि यार बहुत हो गया नॉन वेज नहीं खाया चिकन, then I have my way. वे तो है ही है मेरा. Okay. Whey is like like how much percentage of your like protein intake comes from whey? Maximum 1 scoop, not more than that. Okay. Not So more than. Either I mix it in my oats या मैं कोई स्मूदी बना लूंगी with some strawberries या mhm. blueberries या कुछ भी इस टाइप. Max not more than that because non-vegetarians को इतना नहीं. I mean they can easily cover up their protein with chicken and mutton and all those Okay. things. So basically I am lazy तो मैं ज़्यादा बनाने का मन नहीं होता. That's why मेरा half sometimes protein वे से आता है because I'm just too lazy to cook anything. बस जाके बना लिया, दो स्कूप ले लिया, कभी 4 स्कूप ले लिया, on days 5 स्कूप ले लिया. तो Oh, are you serious? Yeah. 5 scoop? हाँ, because उस Oh दिन my मैंने प्रोटीन नहीं लिया होता था, मतलब फूड से. हाँ तो हाँ. आई वाज जस्ट बीइंग लेजी. तो मैंने लाइक 2 बार में 2.5 स्कूप का 2 बड़ा बड़ा शेक्स बना लिया एंड that's pretty much it. I don't think I can stomach that much. I mean, it's pretty heavy. Yeah, I So, mean it is, but I think मेरे को हैबिट हो गया है. I used to हाँ. eat like around 14-15 eggs in a sitting, so आदत है कि उतना ठीक है, चलता है, वैसा है. बट लाइक समटाइम्स पीपल जो बिगिनर्स होते हैं उन्होंने देखा 1-2 बार मुझे इतना खाते या इतना ऐसे पीते हुए, तो दे वर लाइक रियली स्केप्टिकल अबाउट थिंग्स कि क्या I'm इतना sure. करना पड़ता है कि मुझे बॉडी बनाने के लिए या ऐसा कुछ कर दे. बट आई टोल्ड देम कि नहीं, इतना नहीं करना पड़ता. मेरे को टाइम नहीं है बाद में, तो मैं अभी सारा 2 बार में प्रोटीन अपना ले लेता हूँ. नॉट ऑप्टिमम बट लेकिन ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला चीज़. Something, तो yeah. तो वो You really have to choose, yeah, for yourself. एग्जैक्टली. सो Yeah. आइदर यू कैन लाइक स्किप इट या बोल दो कि अब नहीं होगा मेरे से, वो कर लो, या थोड़ा बहुत जो मैनेज हो रहा है एटलीस्ट उसको कंट्रोल कर लो. इट्स वही है कि मैटर ऑफ चॉइसेस कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो. बट Right. yeah. And my next thing that I wanted to talk about was as an adults, लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली बच्चे फॉलो करते हैं आपको. आई बिलीव दैट कि वो कॉपी भी करते हैं इनफैक्ट कई केसेस में, कि आप क्या कर रहे हो, या उनके भैया क्या कर रहे हैं, या दीदी क्या कर रहे हैं, या पेरेंट्स क्या कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि इसको कैसे पॉजिटिवली इम्प्रूव किया जाए? बिकॉज अगर पॉजिटिव होता सब चीज़ तो देयर वोंट बी इतना अनहेल्दी ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड, स्पेशली किड्स. बिकॉज अब किड्स में भी यू मस्ट हैव बीन नोटिसिंग कि कितना तरह का लाइफस्टाइल, मतलब तरह से डिजीजेस बढ़ रहा है विच कुड हैव बीन ईजिली अवॉइडेड. सो कई लोग उसके लिए मेडिकेशन भी बच्चों को दे रहे हैं कई बार, because it is needed to fix those things, certain things. So what's your take on this, ki how do we set the right example for kids? Example का तो यही है कि kids will not listen to you. They will see and they will do what you do, right? So अगर मैं ही रोज समोसे या कचौरियाँ, I mean once in a while ठीक है, we are all human. But मैं ही ऐसे खा रही हूँ तो वो भी वही खाने वाले हैं. मैं ही भुजिया नमकीन ये सब खाऊंगी, वो भी वही खाने वाले हैं. तो I do give them little bit of junk because they are kids at the end of the day. But I make sure कि ये अगर if you want little chips, I will give you. पहले ये बनाना खा लो, उसके बाद अपनी कटोरी ले आओ. मैं पैकेट नहीं देने वाली, 4-5 चिप्स पकड़ा दो. So I've had my way. फ्रूट अंदर जा चुका है, खा लो जितने थोड़े से चिप्स खाने हैं. So that way. If they want milk, they don't want to have plain milk, I get chocolate milk for them. That's fine. दूध तो पी रहे हैं. We have to let them be kids, but at the same time not go overboard ki, eventually they will learn. If you are doing the right thing, chances are कि वो भी they will do the right thing. And what about exercises? ये तो डाइट का पार्ट था कि
like there's a way, I mean there can be many ways जिसको कैसे हैंडल करना है। क्या कुछ लोग के लिए ये बेटर वर्क करेगा कि पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो मे बी बेटर वर्क कर जाए, और कुछ लोग के लिए मॉडरेशन भी वर्क करेगा, तो इट्स लाइक केस टू केस अगेन। बट या व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज आई थिंक वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है एट मतलब ग्रोइंग स्टेज पे एटलीस्ट। या जैसे इंडिया का अभी आपको भी शायद आइडिया होगा इसमें कि कैसे अपना स्पोर्ट्स का या पीटी क्लासेस का रूटीन होता है, लाइक कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता बेसिकली। अब काफ़ी बेटर है लाइक पहले से, लाइक अ लॉट बेटर कि स्पोर्ट्स में थोड़ा बढ़ावा सॉर्ट ऑफ दे रहे हैं एंड पुश कर रहे हैं इनफैक्ट बच्चों को। बट फ्रॉम वॉट आई रिमेंबर मेरे स्कूल में तो एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं था कि सबको स्पोर्ट्स खेलो, नॉट लाइक नहीं। compete करने के लिए खेलो, बट लाइक खेलो वाला चीज़ भी नहीं था कि जाके एटलीस्ट कुछ खेलो। वो भी नहीं था कि एक्स्ट्रा क्लास हुआ तो उसमें जाके मैथ्स पढ़ा देगा कोई टीचर आके कि गेम्स पीरियड है तो आओ मैथ्स पढ़ा दें, ये साइंस पढ़ा दें, जो भी है। बट आई बिलीव वहाँ पे भी एक फैक्टर है विच पीपल नीड टू कंसिडर कि स्कूल में क्या सिखा रहे हैं। प्लस व्हाट डू यू थिंक कि एज अ पेरेंट पीपल कैन डू टू like inculcate some or the other kind of activity for their kids? सबसे बड़ी बात तो पहले तो जब से छोटे हैं तो फिर पार्क ले जाओ उनको। फ्री प्ले से बेटर कुछ भी नहीं है। सो फ्री प्ले करते करते अगर जो थोड़े बड़े हो जाते, लाइक आई बिलोंग टू वेरी स्पोर्टी फैमिली। माय फादर इन लॉ इज अ गोल्फर, माय हस्बैंड इज अ नेशनल लेवल टेबल टेनिस प्लेयर। सो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड माय डॉटर इज अ जिमनास्ट। सो वो दिन में 4 घंटे भी एक्सरसाइज कर सकती है और आई मीन उसको कुछ नहीं होएगा, उसके बाद भी और भी कर सकती है। सो दैट वे बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स। मैं नहीं खेलती थी बचपन में, मेरा बेटा भी बहुत स्पोर्टी नहीं है, बट वी मेक श्योर दैट ही गेट्स लिटिल बिट ऑफ आउटडोर एक्टिविटी एवरी डे, दैट्स फॉर श्योर। We tried him for tennis and all, but we are still looking for it. But yeah, some sort of physical activity that the child also enjoys, maybe 3-4 स्पोर्ट्स खिलवा के देखो उसके किस में इंटरेस्ट है। सो दैट इवन लेटर इन लाइफ अगर उसने करियर नहीं भी बनाया स्पोर्ट्स में तो एटलीस्ट ही कैन प्ले फॉर लेजर आधा 1 घंटा। जब वो जॉब से आए, जब वो बड़ा हो जाए, यू नो ही हैज दैट थिंग टू फॉल बैक कि मैं बैडमिंटन खेल के आता हूँ 1 घंटा या मैं टीटी खेल के आता हूँ। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट इट इन आवर डेली लाइव्स। So स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट थिंग। या yeah. आजकल जिम भी जाते हैं बच्चे, विच इज ग्रेट, बट आई थिंक स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट, आई मीन इट्स ग्रेट वे टू introduce exercise in the child's life. जिम में sometimes you may not find that competition वाला feeling या team spirit वाली चीज़ which I think sports provides you Yeah. that upper hand उसमें, like कोई भी sport हो तो you have Absolutely. someone who is right next to you and you are competing, तो वो motivate भी करता है to do better the next time। वो मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के बोला जाता है compete करो, बट इट्स लाइक अ फीलिंग जो नेचुरली आता है कि यू हैव टू compete with that other kid to like हाँ मुझे इससे अच्छा करना है या मुझे इसको इस वे में बीट करना है चीज़। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो बिल्ड्स अप सम काइंड ऑफ मोरल एंड बूस्ट कि हाँ अब मुझे शो अप करना है यहाँ पे एवरी डे या फिर लाइक एवरी वीक एटलीस्ट, जो भी है मतलब रूटीन। एंड इसी के साथ इसका ऑपोजिट स्पेक्ट्रम होता है जहाँ पे आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर कि कितना कॉमन है, बट मैंने काफ़ी कॉमनली नोटिस किया है कि पीपल जस्ट हैंड ओवर सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेट टू देयर किड्स जस्ट टू लाइक बोर हो रहे हैं तो वो कर दिया, रैदर देन आस्किंग देम टू लाइक गो फॉर अ वॉक और लाइक थोड़ा सा साइकिलिंग कर लो। लाइक यू लाइक किड्स लर्न साइकिलिंग या बेसिकली सब कुछ अर्ली एज पे ही की सीख लिया तो बाहर भी जा सकते हैं, दे कैन एक्चुअली वॉक अराउंड इफ़ गिवन द चांस, उनको अच्छा लगेगा। बट आई हैव बीन नोटिसिंग कि लोग डिवाइस पकड़ा दिए कि ये पकड़ो अब मेरे पीछे से हटो, और सॉर्ट ऑफ ऐसा अप्रोच रखते हैं विच आई फील कि देन अगेन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मतलब अनहेल्दी लाइफ स्टाइल बिकॉज सेडेंटरी फेज में चला गया। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सी डिवाइसेस के बिना तो लाइफ है नहीं, स्पेशली आफ्टर कोविड। इट्स अ वेरी वेरी रियल प्रॉब्लम। मतलब बच्चे बाहर जा नहीं सकते थे और बुक्स भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, खा लिया, पी लिया, एक्सरसाइज कर ली, नाउ व्हाट मम्मी, नाउ व्हाट। सो देन यू नो डिवाइसेस। उसके बाद पेरेंट्स ने चलो डिवाइस पे ही करना है तो कोडिंग भी कर ली। आई हैव सीन फुटबॉल क्लासेस हैपनिंग ऑनलाइन, कैन यू इमेजिन, इन कोविड। सो ये भी हुआ है। So devices are a very real part of our life. We have to accept them. At the same time, we have to time them. That is definitely time नहीं करेंगे। आज हम भी फोन लेके बैठते हैं। We were not born, at least I was not born with, I was I think
20 when I got my first phone. So आज मैं ही addicted हूँ अपने phone से. I'm on Twitter, Instagram. So what can I expect? They are born with these devices. So it is up to us to control them, to time them. We Okay. can't blame them. Okay, but like you said, right, कि you have to set an example as well. अपने को रखना भी चाहिए. तो if they just keep watching you, like आप sedentary routine हो, like आप पीसी के सामने बैठे हो या काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, irrespective of like what you're doing, तो sometimes वो कैरी ओवर होता है. एंड लाइक समटाइम्स अगर आप बस दिन भर बैठे हो और मंच कर रहे हो स्नैक्स पे, तो दैट्स प्रॉब्ली व्हाट दे विल बी डूइंग अगेन, क्योंकि वो बहुत इजीली ट्रांसफ़र होता है. एंड समटाइम्स पेरेंट लाइक आओ साथ में बैठ के ही खाने लगते हैं कि बैठ के खा रहे, तो दैट इनकरेजेस दैट बिहेवियर. वेयर आई फील कि ओकेजनली इज़ फाइन, लाइक मॉडरेशन में, लाइक ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को भी पूरा छोड़ देना है कि पूरा त्याग दिया सब कुछ कि नहीं खा सकते बाहर का, ऐसा भी नहीं है. बट आई थिंक देयर इज़ अ फाइन बैलेंस जो कि मेंटेन किया जा सकता है ओवरऑल. Absolutely. Absolutely. Yep. And when it comes to nutrition for kids, like before like I wrap up this podcast, I also wanted to touch on nutrition for kids. क्योंकि exercise वाला part तो sports से like हाँ it makes sense कि that would be the most optimum way, like yeah, one of the more like common ways that we can approach. But when it comes to nutrition, what should be mindful of, like कब उनका nutrition में कुछ change करना है या नहीं करना है, या एटलीस्ट अर्ली स्टेज पे, लाइक व्हेन दे आर लाइक अब बड़े हो गए तो उतना ज़्यादा नहीं देखना होता, बट लाइक समवन हु इज़ लाइक टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल किड्स, जो जहाँ पे अवेयरनेस का नीड है, वहाँ पे व्हाट डू यू थिंक शुड बी द अप्रोच और वे टू गो अबाउट इट? So again, whatever you eat, the child eats that. अगर आप चिकन खा रहे हो, there are chances. I love chicken, so both my kids love chicken. So their protein is sorted. So अगर आप अनहेल्दी खा रहे हो, उन्होंने भी वही खाना है, right? So it's really up to you. And आप extra I mean, I can cook extra for them. I can make something अलग से for them. But then at the end of the day, they'll say, "Mama, आप तो ये खा रहे हो. Why are we expected?" Because kids are smart. They're so sharp. वो देख लेंगे कि आप क्या खा रहे हो और उनको क्या मिल रहा है खाने के लिए. सो एट द एंड ऑफ द डे पहले आपको खुद को ही प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अपना सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा, एंड देन दे विल बी फाइन. किड्स आर स्मार्ट, they will learn. What they see is what they do. Okay. It makes sense. So like a person can't be a hypocrite यहाँ पे, because जाके कि मैं अपना जैसे मर्जी बट बच्चों को मैं हेल्दी पूरा दूंगा या दूंगी. Yeah, that can't happen. वो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे. They will question. Okay. And one last thing, what do you think is the most significant mental block जो लोग face करते हैं when they are trying to start off their fitness lifestyle? लेडीज में तो यही है कि कैसे मैं अपने लिए अलग से खाना बनाऊं, एंड हाउ विल आई वे एंड मेजर एंड एवरीथिंग. और सबसे, बिकॉज वी आर वेरी सोशल ऑल ऑफ अस, वी हैव आवर पार्टीज एंड आवर रिलेटिव्स, एंड यू नो उसके घर जा रही हूँ वो बुरा मान जाए, लोग बुरा बहुत मान जाते हैं. अगर मैं कोई मुझे कुछ खिला रहा है और मैं मना कर दूं, बुरा मान जाएंगे. कि मैं बोलूं मैं डाइट पे हूँ या मैं ये नहीं, इट डजंट फिट इनटू माय डाइट, फिर भी बुरा मान जाएंगे. सो ये सब चीजें किसी को नाराज ना करना. यू नो व्हेन आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स, अगर मैं नहीं ड्रिंक करूं तो वो बुरा मान जाएंगे. ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मेंटली क्वाइट स्ट्रांग. ओके, मेक सेंस. और इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि एक तो लाइक ये फैक्टर मैंने सोचा नहीं एक्चुअली, बुरा मान जाएंगे वाला. दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, जो आई वंडर कि मैंने मिस कैसे कर दिया इसको पूरे चीज़ों में ऑल टुगेदर. सो जो मेरा फैक्टर है इसमें कि जो मैंने नोटिस किया है मेंटल ब्लॉक का, वो है कि रिजिडिटी, क्योंकि वो अपने बिलीव्स चेंज नहीं करना चाहते. लाइक कुछ नया इन्फॉर्मेशन आता है, इट गेट्स हार्ड फॉर अस टू एक्सेप्ट कि ये भी एक्चुअली वर्क करता है, ये एक्चुअली हेल्पफुल है. सो आई थिंक अगर साइकोलॉजिकल लेवल से देखें तो आई बिलीव दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स आई नोटिस अक्रॉस ऑल एजेस. स्पेशली जो जिनकी ज़्यादा एज है उनमें तो डेफिनेटली का मिलता ही मिलता है, बिकॉज उन्होंने दुनिया देखी है, तो दे नो कि ऐसा कुछ अप्रोच रखना है और ऐसा वर्क नहीं करता होगा, इस तरह का है. सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड. बट आई थिंक पीपल फाइंड अ लॉट ऑफ रिलेटेबल इंस्टेंसेस इस एपिसोड से कि उन्होंने भी फेस किया होगा, या इफ़ दे हैव किड्स दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. सो या, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. थैंक यू, दिस वाज फन.